Good morning, dear students. Today we are going to start our first online class for the chapter 3 Gauss theorem. As you have done approximately all the topics offline, now we are going to start at the last topic of the chapter online. Now, topic is the electric field due to uniformly charged solid sphere. हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैलकुलेट करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर. जैसे हम सबने आप सबको आता है कि हमने एक शेल का आर्टिकल किया था जिसमें हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल थी एंड वी हैव कैलकुलेटेड द electric field due to uniformly charged shell. Now today we have a sphere. Now first case is the when the point of observation lies outside the sphere. When point P lies outside the sphere. जो आपके पास पॉइंट P है वो स्फीयर के कहाँ आउटसाइड लाई कर रहा है. लेट अस सपोज वी हैव अ सॉलिड स्फीयर of radius r. R is the radius of the solid sphere and let us suppose q is the charge distributed over the sphere. स्फीयर के वॉल्यूम के ऊपर हमने कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज द q. एंड लेट अस सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट p at a distance small r from the center of the sphere. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर O सेंटर से आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे रखा हमने, दैट इज एट द डिस्टेंस R एंड कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज Q. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P. To find the electric field at a point P, firstly we will draw the Gaussian surface. हमने क्या है, ये गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये आर्टिकल सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस कौन सा है, यहाँ पे स्फेरिकल. गॉसियन सरफेस कौन सा है आपके पास, स्फेरिकल. और स्फीयर आर जिसका क्या है आपके पास रेडियस. Now consider a small area ds around this point P. पहले हमने क्या करना है, अराउंड दिस पॉइंट P के अराउंड स्मॉल एरिया ds लिया. तो ये देखो आपके पास इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, प्लस q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास, आउटवर्ड एज द सोर्स इज द पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली अगर आप एरिया वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द electric field. Now firstly we are going to calculate the electric flux through this small surface, then we will calculate the total flux by integrating it. Now flux का formula क्या होता है साढ़े कोल, flux is equal to integration over the closed surface E dot ds. That will be equal to E dot ds is equal to q by epsilon naught. ये किसकी स्टेटमेंट है आपके पास, गॉस थ्योरम की. गॉस थ्योरम ने क्या लिखा है, E डॉट ds ओवर द क्लोज्ड सरफेस S इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. q क्या है यहाँ पे, चार्ज इन क्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस. तो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज क्लोज किया हुआ, दैट इज q. नाउ ओपन दिस डॉट प्रोडक्ट E ds cos of 0 degree as the angle between the ds vector and E vector is 0 from here, q by epsilon naught. Cos 0 1. Now E will be outside, ds q upon epsilon naught. So E into S. S is the surface area of the Gaussian surface. Q upon epsilon naught. तो E आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैंने S की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ गॉसियन सरफेस है दैट इज द स्फीयर. तो गॉसियन सरफेस स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, दैट विल बी इक्वल टू Q upon epsilon naught. ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈल्यੂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੋਂ 1/4 ਪਾਈ epsilon naught Q upon r square. This is the electric field outside the sphere. Now this one we have calculated in terms of the charge. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, in terms of charge. Now next we have to calculate this expression in terms of the density. जैसे कह दिए rho is the volume charge density. ਤਾਂ ਰੋ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ. ਵੋਲਿਊਮ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਲਓਗੇ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ 4/3 ਪਾਈ आर क्यूब. फ्रॉम हेयर क्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. क्यू की वैल्यू इतने पुट कर दी असी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रैशन आ जाऊगा इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू
4/3 pi r cube upon r square. This is the expression for the electric field outside the sphere in terms of the density. Clear? Now next case, second case जो हमने करना है, that is the when the point P lies on the sphere. Next is the observation point P. Second case, P lies on the sphere. ਜਦੋਂ point P sphere ਦੇ ਉੱਪਰ लाई करूगा, if we have a sphere, then in that case we have the observation point P on the sphere. The radius of the sphere is r, again charge is distributed q. ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਜਸਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਾ r is equal to capital R, क्योंकि जो तुम इतने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो सेम ही होगा एज द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. तो असी की करना है, द लास्ट एक्सप्रैशन पुट r is equal to capital R. तो वो अकॉर्डिंग साढ़े को की आंसर आऊगा इतों E is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square. E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square. नैक्सट इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी दे विच भी इहनूं किहदे नाल रिप्लेस कर देना, कैपिटल R दे नाल. तो ई की वैल्यू आ जाऊगी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर कैंसिल हो गया, ऊपर पावर 1 बचूगी. 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 4/3 पाई आर. दिस इज द एक्सप्रैशन फॉर द इलैक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी एंड ए चार्ज की फॉर्म च आया when the point P lies on the sphere. And the last case, when point P lies inside the sphere. When the point P lies inside the sphere. जदों point P sphere दे inside lie कर रहा है. We have a sphere. Let us suppose this is the observation point P. Now let us suppose R is the radius of the sphere and हुण तुसी पॉइंट P चो पास होंदा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे. लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज द R. अप्लाइंग गॉस थ्योरम E डॉट ds दैट विल बी इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट. Q डैश की इत्थे चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस. असी गॉस थ्योरम यही कहने कि गॉस थ्योरम की कह रही है सुनो, the flux through the closed surface is equal to the charge enclosed divided by epsilon naught. तो उन्हें इतने चार्ज कितना इनक्लोज किया वो असी कैलकुलेट करना इस गॉसियन सरफेस ने. लास्ट केसिस दे विच गॉसियन सरफेस उन्ना ही चार्ज इनक्लूड कर रहा सी जिन्ना टोटल स्फीयर ते सी. बट हुण की है, असी जिहड़ा चार्ज है वॉल्यूम के उपर डिस्ट्रीब्यूट किया ते बट जदों असी पॉइंट इनसाइड लै रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R ते फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो उत्थे की है तुहाडे कोल एक पर्टिकुलर पोर्शन ही इनक्लूड हो रहा है गॉसियन सरफेस. जो एक पर्टिकुलर पोर्शन ही इनक्लूड हो रहा है तो मतलब असी चार्ज भी इस पोर्शन के उपर ही कैलकुलेट करांगे. नाउ हुण इस इहदे विच की है साडे कोल बेसिकली पहला असी क्यू डैश फाइंड करना है. क्यू डैश फाइंड करन दे लई असी यूनिटरी मैथड लगावांगे. असी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीता है किन्ने वॉल्यूम के उपर 4/3 पाई आर क्यूब ते, ते यूनिट वॉल्यूम ते कितना आऊगा, यूनिट वॉल्यूम ते कितना आऊगा Q upon 4/3 pi r cube. This one is के टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द वॉल्यूम 4/3 pi r cube. यूनिट वॉल्यूम तो कितना आ गया Q upon 4/3 pi r cube. Now what is the charge on sphere of रेडियस R. मतलब हुण गॉसियन सरफेस के उपर चार्ज कितना है, तो यूनिट वॉल्यूम चलना है. जे असीं गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम नाल इहनूं मल्टीप्लाई कर दीए तो गॉसियन सरफेस के अंदर जिन्ना चार्ज हो आजू साडे कोल. तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई रजे Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. ये तुहाडे कोल की है चार्ज इन द यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब. ये किहदा हो गया वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का, कि गॉसियन सरफेस के विच इन्ना चार्ज होगा. जो कैंसल होंदा कैंसल कर दो. तो क्यू डैश कितना आ गया Q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 की आ जाऊगा इंटीग्रेशन E ds. सेम मैथड नाल ही करना है इत्थों E वैक्टर एंड ds वैक्टर. E ds cos 0 डिग्री. Q डैश की वैल्यू पुट कर दो Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ सॉल्व इट. इत्थों आ जाऊगा तुहाडे कोल E
एस की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब बाय एप्साइलन नॉट। इनू सॉल्व कर लो रजे, इतों एक आर कैंसल, आर स्क्वायर आर क्यूब तो एक आर बचूगा इतों। ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज आंसर। ठीक है जी, ये इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़िया इन टर्म्स ऑफ द चार्ज। जे असी डेंसिटी की फॉर्म च कढ़ना हो तो की आऊगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। क्यू की वैल्यू डेंसिटी की फॉर्म च की आ रही है साडे कोल, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर एज इट इज़ ऊपर है, नीचे आर क्यूब आ, आर क्यूब ना आर क्यूब कैंसल हो गया, की बचा साडे कोल 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, कैंसल होंदा जो कर दो 4/3 पाई इंटू आर। तो दिस इज़ द इलैक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। रो रह गए इत्थे, रो वी आर गोइंग टू इनक्लूड हेयर। तो हुण देखो असीं की लिखिया कि जदों पॉइंट P आउटसाइड लाई कर रहा है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की है दैट इज़ वेरिंग इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है जी, जदों पॉइंट P ऑन द सरफेस है तो इलैक्ट्रिक फील्ड कितना रहा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 4/3 पाई आर। आर फिक्स है तो मतलब ये वैल्यू की होगी, एक फिक्स होगी। जदों पॉइंट P इनसाइड लाई कर रहा है तो इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आर आ रहा, मतलब जो तुसी सफीयर के सेंटर तो बाहर वाल नूं मूव होवोगे तो की होगा तुहाडे कोल सेंटर के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाऊगा क्योंकि आर की वैल्यू 0 है। जिवें जिवें सेंटर तो बाहर नूं आओगे इलैक्ट्रिक फील्ड इनक्रीज होगा, सरफेस से आके मैक्सीमम वैल्यू हो जाऊगी, एंड जो तुसी सरफेस तो बाहर जाओगे तो इलैक्ट्रिक फील्ड की होने लग जाऊगा, डिक्रीज होने लग जाऊगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ हेयर। किहदे किहदे च ग्राफ प्लॉट करना तुसी, इलैक्ट्रिक फील्ड ई एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सफीयर। जे मान लो इत्थे साडे कोल एक सफीयर है तो सेंटर के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 0। तो तुसीं सेंटर तो बाहर नूं जा रहे हो तो इलैक्ट्रिक फील्ड की है डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनसाइड की है डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस। जिवें जिवें तुसीं बाहर नूं जा रहे हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इलैक्ट्रिक फील्ड की हो रहा है इनक्रीज हो रहा। दैन एट द सरफेस मतलब जो तुहाडे कोल स्मॉल आर की वैल्यू काहदे बराबर है, कैपिटल आर दे इक्वल, इलैक्ट्रिक फील्ड की हो गया मैक्सीमम हो गया, मैक्सीमम वैल्यू हो गई इत्थे। एंड आफ्टर दैट जे तुसी आउटसाइड जा रहे हो तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड ये दोनों मीट कित्थे होणगियां एट इनफिनिटी ते जाके इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा 0 होगा। सो दिस इज आवर आर्टिकल इन विच वी हैव कैलकुलेटेड द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सफीयर। असीं इहदे 3 केस कीते ने, पॉइंट P लाइज इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सफीयर। थैंक यू।